ऐसा अक्सर होता है कि हर जगह कोई न कोई ऐसा आदमी होता है जो अपना रौब जमाता है, दूसरों पर दादागिरी करता है। स्कूल में भी ऐसा होता है, कोई न कोई लड़का या लड़की, वैसे तो अधिकतर लड़कों में पाया जाता है कि कोई न कोई दादागिरी करता है, अपने से छोटे या कमज़ोर पर जुल्म करता है, उसका मजाक उड़ाता है, टीजिंग करता है या प्रोवोकिंग करता फिरता है। ऐसे ही एक लड़के के बारे में हम अभी एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का नाम है द लिटिल बुल्ली, यानी छोटू दादा। So this is the second lesson of Unit 8 of our textbook Marigold, written by Enid Blyton again. So now let us get into the story and find out for ourselves who this little bully is. Do you know of any child who teases others or pushes them around? What would you call such a child? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to teach all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin. There was a boy, Hari by name. Physically, he was not that tall, big, or stout or muscular, but he was strong enough to create a fear among other boys and girls around. He used to teach the boys and girls of his school. What he used to do was to pinch others. That was very painful and he enjoyed it. Because of this pinch of his, bruises used to appear on the hands of those who were pinched. काला काला निशान निकल जाता था, पड़ जाता था पिंचिंग के वजह से। और एक शैतानी जो वो और करता था वह था उसके पास एक पिन या सुई होता था जिससे वह दूसरों के शरीर में या हाथ में चुभो देता था। उसे बहुत मज़ा आता था ये सब करते हुए। So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अन्य बच्चे हरी से कितना नफ़रत करते थे। बदले में वो लोग भी हरी को पिंच करना चाहते थे, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि वे जितना करेंगे हरी उसका डबल जोर लगा कर करता था। पिंचिंग करने में वह उस्ताद था, पिंचिंग स्पेशलिस्ट था हरी। पिंचिंग करने में उसे कोई जीत नहीं सकता था, इसलिए बाकी बच्चे चुपचाप सहन कर लेते थे और टीचर से भी कंप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि टीचर उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता था या ये समझेंगे कि ये बच्चे बहाना या कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. एक दिन क्लास के सभी बच्चे पिकनिक पर जाते हैं समुद्र किनारे पूरे दिन के लिए। बच्चे सभी एक्साइटेड थे, जोश में थे और खुश थे। On that day the sun shone bright and all the children were wild with excitement.
They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. उस दिन मौसम बढ़िया था, सूरज चमक रहा था, कोई बारिश का चांस नहीं था। सभी उत्साहित थे और रेलगाड़ी में एकत्रित होकर बैठ गए, लेकिन कोई भी हरि के पास नहीं बैठा। कारण वही था, वह पिंच करता था इसलिए। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him. जब समुद्र किनारे पहुँचे, सभी उछल कूद करते हुए रेलगाड़ी से बाहर आए, चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए, और समुद्र किनारे की रेत यानी सैंड तक एक दूसरे के हाथ पकड़कर दौड़ लगाए। लेकिन यहाँ भी किसी ने हरि का हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने उसके नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं किया। Hari was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. अब हरि को गुस्सा आ गया। वह रेत पर एक कोने में पत्थरों से घिरा एक स्विमिंग पूल जैसी जगह जाकर बैठ गया। उसने अपना लंच बॉक्स निकाला और देखने लगा। बहुत स्वादिष्ट खाना था। खाने में बॉयल अंडे, जैम सैंडविचेस, ब्रेड के टुकड़े और बटर, एक जिंजर केक और एक चॉकलेट बार थे। उसने सोचा कि वह सारे अकेले ही खाएंगे, किसी को भी नहीं देंगे। Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. Good morning. I am so pleased to meet a boy like you. Hari turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? जैसे ही उसने अंडों से शुरू करता है, जैसे ही वह अंडों से शुरू करता है यानी अंडे खाना शुरू करता है, उसे कोई कर्कश, भारी भरकम, रफ आवाज़ सुनाई देता है। कोई उससे बोलता है, गुड मॉर्निंग, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, आप जैसे लड़के से। हरि उस तरफ मुड़कर देखने लगता है, डरे सहमे से। उसने क्या देखा होगा? Hari saw a monster crab walking sideways out of the pool. His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. He held out his front claw to Hari. Hari put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. तो उसने देखा एक बहुत बड़ा राक्षस जैसा दिखने वाला एक क्रेब, एक केकरे को देखा। वह उस पुल से बाहर चला आ रहा था, साइडवेज चलते हुए। आप देखे होंगे केकरा कैसा चलता है, दाया तरफ या बाया तरफ, हमारी तरह सीधे आगे या पीछे नहीं। उसकी आंख अजीब थी, जैसे किसी डंडे के ऊपरी हिस्से में हो। उसने अपना आगे का क्लॉ यानी पंजा यानी नाखून आगे किया हरि की तरफ। हरि ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया शेक हैंड्स करने के लिए, मगर केकरे ने अपने दोनों पिंसर्स के बीच उसका हाथ लेकर जोर से दबा दिया, जिसकी वजह से हरि जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगे।
उसे आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। "Ah, here is my good cousin," said the crab pleasantly, and to Harry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain. कुछ देर बाद वहाँ एक बड़ा सा लॉबस्टर भी आता है। लॉबस्टर, दिस इज लॉबस्टर, जिसकी ओर केकरा इशारा करते हुए बोलता है कि वह उसका कजिन है, कजिन भाई है या बहन है। वह हरी के नज़दीक आ रहा था। हरी रोकना चाहता था, पर उसे रोक पाता उससे पहले ही लॉबस्टर अपनी पिंसर जैसे पंजे से हरी को इतना जोर से पिंच किया कि हरी दर्द से चिल्ला उठा। Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. हरी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसकी हालत और ख़राब हो गई जब उसने देखा कि उस पूल से अनगिनत काउंटलेस और रंग बिरंगे श्रिम्प्स, प्रॉन्स, केकरे और लॉबस्टर निकल आए हैं और हरी को काटने लगते हैं, पिंच करने लगते हैं, चुभोने लगते हैं और तब तक लगे रहते हैं जब तक हरी के शरीर में नीले काले ब्रूस यानी धब्बे ना बन जाते हैं। हरी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। "Don't you like it?" said all the creatures in surprise. "Why, we were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. Come, come, join in the fun." क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? उनमें से किसी एक ने पूछा। हमें तो बताया गया है कि तुम्हें दूसरों को पिंच करने में बहुत मज़ा आता है। तुम पिंचिंग के चैंपियन हो, तो अब तुम पर पिंचिंग हो रहा है तो क्यों रो रहे हो? आओ हमारे साथ मस्ती करो, पिंचिंग का मज़ा उठाओ। Harry leapt to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Harry saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. हरी अपने पैरों पर अचानक उछल पड़े, जोर से चिल्लाते हुए। उसका जो टिफ़िन था वो गिर गया और रोलिंग करता हुआ, लुढ़कता हुआ उस पूल में गिर गया। जब क्रैब्स और लॉबस्टर ने देखा, वे वहाँ वापस पहुँच गए उसे खाने के लिए। हरी ने देखा कि अब सबकी ध्यान खाने पर है और थोड़े समय के लिए उसे भूल गया है, तो उसने वहाँ से भागना शुरू किया, रोते हुए, आंखों से आंसुओं की धारा बहाते हुए। "They only did to me what I keep doing to the other children," he thought. "But how it hurts. And how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick any more." आखिरकार जब उसे लगा कि वह बच गया है, तो उसने सोचा कि ये सब मुझे वही कर रहे हैं जो मैं स्कूल में दूसरे बच्चों को करता हूँ, लेकिन
कितना दर्द होता है इस पिंच से मुझे आज पता चला है, और मैं कितना नफ़रत करता हूँ उन केकड़े और लॉबस्टर से। इसी तरह मेरे स्कूल के अन्य बच्चे भी मुझसे कितना नफ़रत करते होंगे। ठीक, मैं समझ गया। आज से मैं कभी पिंचिंग या प्रिकिंग नहीं करूँगा। So children, that was the story of the little bully Hari.